نے دل دے کر نکھاریں گے روحے برگو گلاب، ہوں نے دل دے کر نکھاریں گے روحے برگو گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 6 ستمبر 2020 آج ہمارا خصوصی پروگرام ہے 6 ستمبر 1965 کی جنگ کے حوالے سے، یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے، اور آج ہم دیکھیں گے کہ ماضی میں کس شاندار طریقے سے ہماری افواج نے، ہمارے بہادر جوانان نے ملک و قوم کا دفاع کیا تھا۔ تو چلتے ہیں آج کے ہمارے اس پروگرام کی طرف اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں بذریعہ لب کشائی یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے۔ سرفروشی کی تمنا اب بھی ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب بھی ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ 6 ستمبر 1965 ہمارا عسکری تاریخ کا انتہائی اہم دن ہے۔ یہ دن ہمیں جنگ ستمبر کے ان دنوں کی یاد دلاتا ہے جب پاکستان کے مسلح افواج اور پوری قوم نے بہادری سے بھارتی جارحیت کے خلاف اپنی آزادی اور قومی وقار کا دفاع کیا۔ اس دن بہادر پاکستانی شہریوں نے اپنی مسلح افواج کے ساتھ یکجہتی کا بے مثال مظاہرہ قائم کیا، اور یہ جنگ پاکستانی قوم اور مسلح افواج کی وہ مشترکہ جدوجہد تھی جو آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ کا کام کرتی رہی۔ اس تاریخی دن کے ساتھ ایسی انمٹ یادیں اور نقوش وابستہ ہو چکے ہیں جنہیں زمانے کی گرد کبھی نہ دھندلا سکے گی۔ یہ دن جہاں ہماری پاکستانی قوم کے لیے بڑی آزمائش کا دن تھا، وہاں پاکستان کی جرأت، نڈر اور بہادر مسلح افواج کے لیے بھی انتہائی کڑا وقت تھا۔ اس روز اپنی پوری قوم اور فوج کے افسروں جوانوں نے باہم مل کر رفاقت کے سچے جذبے کے ساتھ بزدل اور مکار اور عیار دشمن کے ناپاک اور گھناؤنے عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ ان فرزندان پاکستان کی بے مثال اور لازوال قربانیوں کی بدولت آج ہمیں تاریخ میں ایک باوقار مقام حاصل ہے۔ 17 روزہ اس تاریخی جنگ میں ساز و سامان اور عددی دینوں لحاظ سے اپنے سے 10 گنا بڑی طاقت کو ذلت آمیز پسپائی اور شکست پر مجبور کر کے پوری دنیا میں اس کا گھمنڈ اور تکبر خاک میں ملا دیا گیا۔ ہماری مسلح افواج نے جرأت اور ہمت سے کام لیتے ہوئے اور عزیز جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے خطرات کا منہ پھیر کر رکھ دیا۔ آج کے دن کی یاد مناتے ہوئے ہمیں اس تاریخی حقیقت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری قوم اور دشمن سے کئی کم تعداد میں ہمارے شیر دل جوانوں اور دلیر مجاہدوں نے، جن میں غازی اور شہید دونوں شامل ہیں، جو کارنامے سر انجام دیے، ان کی جرأت، قربانی، عزم اور پاس عزت کے جذبے کی عکاسی ہی نہیں، ہماری جنگی تاریخ کا ایک زرعی باب بھی شامل ہے۔ ہم ہر سال اس تاریخی دن کی یاد کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے تاکہ قومی یکجہتی کے زبردست مظاہرے اور جرأت اور عظمتوں کے درخشاں کارناموں کی یادگار تازہ کی جا سکے۔ کس کی ہمت ہے ہماری پرواز میں لائے کمی، کس کی ہمت ہے ہماری پرواز میں لائے کمی، ہم پروازوں سے نہیں حوصلوں سے اڑا کرتے ہیں۔ اگرچہ ان حالات میں مشکلات کا سامنا تھا، تاہم 6 ستمبر کا دن ہماری قومی اور عسکری تاریخ میں ایک نئے باب کا آغاز ثابت ہوا۔ ہماری بہادر بری بحری اور فضائی افواج کی پشت پر پوری قوم یکجا ہو کر دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن گئی۔ دنیا نے ہماری قوم کے ناقابل تسخیر جذبے اور مسلح افواج کی شاندار کامیابی اور معرکوں کو تسلیم کرتے ہوئے ہمارے شیر جوانوں، مینرز اور شاہین صفت ہوا بازوں کے جذبوں، جہاد، ایمانی قوت کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا۔ در حقیقت 6 ستمبر ہماری قومی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ عزت اور وقار کے ساتھ زندہ رہنے کی قومی خواہش کی غمازی کرتا ہے۔ ہمارے مسلح افواج کو دنیا کی دوسری افواج سے اس لحاظ سے بھی برتری اور فوقیت حاصل رہی ہے کہ اس نے انتہائی کٹھن اور نامساعد حالات میں سازشوں کے باوجود اپنے پیشہ ورانہ فرائض کی بجا آوری میں غیر معمولی جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ناممکن کو ممکن قرار دیا۔ اس میں عسکری مہارت اور تربیت کے ساتھ ساتھ جذبہ جہاد اور قوت ایمانی کا ہتھیار سب سے مؤثر اور کارگر رہا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عسکری جوانوں اور افسران کو قوت ایمانی کی جس دولت سے نواز رکھا ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم سے 10 گنا بڑی طاقت کا حامل دشمن بھی ہر وقت ہم سے لرزاں اور خوفزدہ رہتا ہے۔
6 सितंबर की याद मनाते हुए जब हमारा जहन इस तारीखी मार्के की वर्क गर्दानी करने लगता है तो हम देखते हैं कि किस तरह वतन अजीज़ की मुक़द्दस और पाक सरहदों के तक़द्दुस को रोंदते हुए हम पर हमला कर दिया गया था। बैनुल-अक़वामी सरहद की इस तरह खुला हिराफ वर्जी का किसी तौर तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, लेकिन हमें जिस अयार और बुज़दिल कौम से पाला पड़ा था उनके असूलों की पामाली इसकी सरशिस्त में शामिल है। हमारी बेदाद और जिंदा कौम ने इस मौके पर कौमी यकजहती का बेमिसाल मुजाहिरा करते हुए दुश्मन के नापाक और मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिला दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का विड करती हुई पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज ने भारत की जारहियत और कुफ्र की गरूर का सर कुचल कर रख दिया। 6 सितंबर का तारीखी दिन अपने जदू में कुछ ऐसी यादें और नकूश छोड़ गया जिनको याद करके हमारी दिलेर मुसल्लह अफ़वाज कौम का सर फहर से बुलंद हो गया। 6 सितंबर 1965 को भारत ने मकबूजा कश्मीर में मुजाहिदीन आज़ादी के पैदल पे फतूहात और मतवक्का कामयाबियों से बौखला कर बाज़ाब्ता ऐलान जंग करने की इलाक़ाई पाबंदी को महफूज़ रखे हुए लाहौर के महाज पर हमला कर दिया। भारत के जंगी नाखुदाओं को यह हरकत करते हुए ये खुशफहमी हो गई थी कि पाकिस्तान शायद तरने वाला है। इस खुशफहमी के बगैर वो ये बिड़ नहीं हाँक सके कि शाम लाहौर जिमखाना में छोटा पैग चढ़ाएंगे। 6 सितंबर को जो कुछ हुआ इसने भारत के हुक्मरानों को इसके ख्वाब से झंझोड़ कर रख दिया और इसी शाम तक लाहौर पर कब्जा करने के बजाय इन्हें अपने मुसल्लत करदा जंग के बाकी मुद्दत लाहौर से दूर दराज अपनी सरजमीन पर लड़नी पड़ी, जिससे इनके कदम 1 इंच आगे न बढ़ सके। लाहौर दाता की नगरी और मियाँ मीर का शहर है जिसको फतह करने का मकरबा ख्वाब हिंदुस्तान ने देखा था। इस शहर की फ़ज़ाओं में तो तोपों की गनगरज की आवाज़ें बीच शहर तक सुनी जा रही थी, लेकिन हर शख्स खुद हिफाजती की तदबीरों से बेनियाज सरहद की तरफ जाने के लिए बेचैन था। न इसको दिफा के लिए खंदके खोदने का ख्याल रहा, न आसमान से गोले गिरने का खौफ। वो तो आसमान पर लड़ते हुए अपने जहाज़ों को दादे शुजात दे रहे थे और किसी भी तरह सरहदों पर फौजी जवानों के साथ शरीक जहाद होना चाहते थे। 6 सितंबर को भारतीय फौज 7 मुकामात से पाकिस्तान पर हमला आवर हुई। सियालकोट, वाघा, बरकी, कसूर, खेमकरन और सुलेमान की ये 7 महाज हाजी पीर साहबा और कश्मीर में दूसरे मुकामात के अलावा थे। इनका मकसद पाकिस्तान को घेर लेना और इसकी शहरक को काट देना था। अमन, आश्ती और दोस्ती का नकाब चढ़ाकर अपनी जारहियत से कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, मानावर, मंगरोल और गोवापुर पर कब्जा करने वाले पाकिस्तान को भी ताड़ना वाला समझ बैठे थे और इन्हें यकीन था कि 6 सितंबर को ही दोपहर तक लाहौर फतह कर लेंगे। इसलिए भारतीय फौजियों को कहा गया था कि वर्दी का एक नया जोड़ा साथ रखे ताकि माल रोड पर जब GN चौधरी अपनी फौज को सलामी ले तो इस वक्त ये नई वर्दी पहनी जा सके। अफसरों को मैस वर्दी रखने का हुक्म दिया गया था ताकि लाहौर जिमखाना में कॉकटेल पार्टी में पहन सकें, लेकिन हक और सदाकत की फतह का अल्लाह का वादा है और इन्होंने मोमिनीन को जो काफिरों के खिलाफ हालत जिहाद में थे ऐसी मदद और ताकत अता फरमाई जिसकी वजह से कई गुना बड़े दुश्मन के मकरबा ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सके। सफ़ेद शिकनों की कारक ज़र्ब और दहशत से दुश्मन के मैदान जंग में पाँव उखड़ गए और तितर बितर हो गए और अपने ही पाँव में रोंदे गए और जो आगे बढ़े वो जहन्नम वासिल हो गए। इस जंग में पाकिस्तान ने शुजात, अज़्म, एसार, कुर्बानी, मिली जज्बा, इत्तेहाद और यकजहती की जो दास्तान रकम की वो तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखी जाएगी। पूरी जंग में लफ्ज़ जुर्म हारिजत ज़बान हो गया। अशियाए खुर्दनोश की कीमतें गिरनी शुरू हो गई। रज़ाकाराना खून देने की अपील पर खून देने के लिए तवील कतारें लगती गई और घंटों इसके लिए इंतज़ार करना पड़ता। शहरी अपने जवानों के लिए खाने पीने के लिए खाना, फल और हार लेकर सरहद तक तो जाते और ये हार तोपों पर डाल देते। अलकिस्सा मुख्तसर सामीन, 6 सितंबर 1965 को शब हमसाया मुल्क ने रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला किया, लेकिन सरहदों के महाज जाग रहे थे। लाहौर के जिमखाना में चाय पीने के लिए दुश्मन के ख्वाब को चकनाचूर कर दिया गया। कौम अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी रही। खुराक और दीगर सामान के ही ढेर नहीं लगाए। नौजवानों की टोलियां दुश्मन से 2-2 हाथ करने घरों से निकल आई। आर्मी चीफ के इस पैगाम पर हर एक फर्द एक पैसा लेकर आए, वो एक टैंक देंगे। कौम ने बढ़ चढ़ कर चंदा पेश किया। खेमकरन और चूंडा में शिकस्त के बाद दुश्मन ने सरगोदा पर फिजाई हमला किया तो शायकीनों ने
पलक जो पकते ही 4 जहाज तबाह करके दुश्मन फिजाइया की कमर तोड़ दी। जंग सितंबर में BRB नहर पाकिस्तान की पहली दिफाई लाइन साबित हुई। दुश्मन ने सितंबर 1965 को पाकिस्तान पर शब खून मारा तो इसका ख्याल था कि रातों रात पाकिस्तान के अहम इलाकों पर कब्जा कर लेंगे और नाश्ते में लाहौर के पाए खाएंगे, लेकिन इन्हें अंदाज़ा नहीं था कि शेर सोया हुआ भी हो तो भी शेर होता है। अफवाज पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान ने मिलकर दीवानावार दुश्मन का मुकाबला किया। सरों पर कफन बांधकर दुश्मनों से भिड़ गए, जिस्मों से बारूद बांधकर टैंकों के आगे लेट गए। अवाम ने अपना सब कुछ दिफाए वतन के लिए कुर्बान कर दिया और दुश्मन के नापाक अज़ाइम को ज़रख़ाक बना दिया। जो पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटाने के लिए आए थे, वो हमेशा के लिए नाकामी का बदनुमा दाग अपने सीने पर सजाकर वापस चले गए और शायद इस बात से भी वाकिफ नहीं थे कि जो ज़मीन शहदा के लहू से सैलाब होती है वो बड़ी जरखेज़ और बड़ी शादाब होती है। इसके सपूत अपनी धरती की तरफ उठने वाली हर उंगली को तोड़ने और इसकी तरफ देखने वाली हर मैली आंख को फोड़ने की सलाहियत रखते हैं। जान दे देते हैं लेकिन वक्त पर आंच नहीं आने देते। सच है कि शहीदों के लहू से जो ज़मीन सैराब होती है, शहीदों के लहू से जो ज़मीन सैराब होती है, बड़ी जरखेज़ होती है, बहुत शादाब होती है। लेकिन अजीज़ सामईन, कौमों और मुल्कों की तारीख में कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जो आम आयाम के बरअक्स बड़ी कुर्बानी मांगते हैं। ये दिन फर्जंदाने वतन की हिफाजत, वतन के लिए तन मन धन की कुर्बानी का तकाजा करते हैं। माओ से उनके जिगर गोशे और बूढ़े बापों से उनकी ज़िंदगी का आखिरी सहारा कुर्बान करने का मुतालबा करते हैं। कुर्बानी की लाजवाल दास्तानें रक़्म होती हैं। सरों पर कफन बांधकर सरफरोशान वतन रस्मगाहे हक़ व बातिल का रुख करते हैं। आज़ादी को अपनी जान और माल पर तरजीह देकर दीवाना वार लड़ते हैं। कुछ जामे शहादत नोश करके अमर हो जाते हैं और कुछ गाजी बनकर सुरहरू होते हैं। तब जाकर कहीं वतन अपने आज़ादी, विकार और अलहदा तशख़्ख़ुस बरकरार रखने में कामयाब होते हैं। ये आयाम फैसला कुन होते हैं कि अगर कुर्बानी का हक अदा न किया जाए, जान और माल को वतन पर तरजीह दी जाए, माँ की ममता अपने जिगर गोशे को कुर्बान करने से गुरेजा हो, बूढ़ा बाप अपना और ख़ानदान का सहारा खोने के लिए तैयार ना हो, तो फिर वतन अपना वजूद खो बैठते हैं, कौमी तारीख का हिस्सा और पारीना किस्सा बन जाती हैं और आज़ादी की जाए गुलामी की ज़िंदगी कौमों का मुक़द्दर बन जाती है। रब कायनात से दुआ है कि मुल्क व कौम की हिफाजत में हमें अपना तन मन धन कुर्बान करने की लाजवाब क़ुव्वत अता फरमाए, क्योंकि ए अर्ज़ वतन आज भी अपना ये अहद है, ए अर्ज़ वतन आज भी अपना ये अहद है, हम हर्फ़ वफ़ा खून से तहरीर करेंगे। शुक्रिया।